Hello student, I am teacher Shishma. Today I am going to teach subject SST and the continuation of chapter the Constitution of India. So continuation of the fundamental rights. As we have learned in the previous video that there are 7 fundamental rights and which are given to every citizen by government, by the Constitution. So we have learned about right to equality, that all people are equal in the eyes of law. कानून के हकों में हम सारे एक जैसे, that I have taught you previously. Right to freedom, every person has right to talk, to speak, to gather. So these are the rights given by the Constitution. And the third point that today we are going to learn, right to education. You can see here in the picture right to education. Okay. Here you can look how children are learning. They have right to educate. So that we are going to learn. And previously we have learned that right to assemble, protest peacefully. Peacefully शांतिदायक आप भी protest भी कर सकते हो. And now today we are going to learn right to education. The right to education was adopted to the Constitution in 2002. सो ये राइट जो है कॉन्स्टिट्यूशन में एडिट किया मतलब पहले तो कॉन्स्टिट्यूशन थे, राइट्स थे, इसमें और एक राइट ऐड किया एंड केम इनटू इफेक्ट 2010 और ये लागू 2002 में उसने ऐड किया, लेकिन लागू कब हुआ? व्हेन इट केम इनटू इफेक्ट 2010 इट इंश्योर फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन फॉर ऑल चिल्ड्रन बिटवीन 6 and 14 years ऑफ एज. तो ये इंश्योर करते, प्रॉमिस करते हैं, इट गिव्स फ्री, सभी बच्चों के लिए फ्री एंड कंपल्सरी. और ये नहीं कि गरीब है हमसे पढ़ा नहीं जाता, वी विल नॉट स्टडी, नो, इट इज़ कंपल्सरी एजुकेशन फॉर ऑल द चिल्ड्रन जिसकी एज जो है 6 years से 14 years तक एज है, उसको गवर्नमेंट इज गिवन इन द गवर्नमेंट स्कूल फ्री एजुकेशन. The next right, fundamental rights I am going to teach you, right against exploitation. Now you can see in this picture what you can observe in the picture. Right against exploitation, child labor is punishable offense in India. So this is the 2 lines that is added in it. See this boy, small boy is working there, maybe below 14 years, he may be 11-12 years old. So let us learn about this rights. The right against exploitation forbids treating someone unfairly for one's own benefits. तो एक्सप्लॉयटेशन, जब भी हम किसी को इस्तेमाल करते हैं हमारी खुद की ज़रूरतें पूरी करने के लिए, सपोज देयर आर इन इंडिया ऑल्सो देयर आर सो मेनी फैक्ट्रीज वेयर स्मॉल चिल्ड्रन वर्क, मैस्टिक फैक्ट्री, glass industry, so many industry are there where small children are doing work. Instead of they should go to the school, they work to earn money, and wherever they work it's so bad condition, there are no proper lights because they are not allowed to work, so forcibly they are working there. Okay, and they are also at the same time earning some money they are earning which they give to their parents. So I want to say that the right to exploitation forbids, not to all, treating someone unfairly for one own benefit. खुद की बेनिफिट्स बनाने के लिए, खुद का प्रॉफिट बनाने के लिए दे आस्क द स्मॉल, दे टेक द हेल्प ऑफ स्मॉल चिल्ड्रन टू डू द वर्क. इट प्रोहिबिट फोर्स लेबर एंड द एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन बिलो 14 years ऑफ एज. तो ये राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन क्या बताता है? प्रोहिबिट करता है. प्रोहिबिट्स मीन्स नॉट अलाउड बाय लॉ. प्रोहिबिट का मतलब क्या है? कानून इसकी मंजूरी नहीं देता. फोर्स लेबर, व्हाट इज फोर्स लेबर? लेबर पता है, जो काम करता है उसको लेबर. व्हाट इज फोर्स? फोर्सिबली उन बच्चों से काम कराना. जबकि 6 to 14 years जो होता है एज, वो उस टाइम बच्चे अब स्कूल की पढ़ाई करते, स्टडी करते, ना कि ये काम करते. और जो भी उसको काम पे रखता है, गवर्नमेंट टेक एक्शन अगेंस्ट दिस पीपल. एंड द एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन बिलो, और उनकी एज बिलो 14 है, दिस चिल्ड्रन वर्क इन फैक्ट्रीज, बहुत सारी फैक्ट्री में, माइंस में, फैक्ट्रीज जो ऑलरेडी आई टोल, मैस्टिक माचिस बनाने वाली, जो पटाखे जलाते हैं, पटाखे फायर क्रैकर्स, देयर दे वर्क, माइंस,
ज़मीन के अंदर से हम लोहा वगैरह निकालते, दे आर ओनली वेरी बैड कंडीशन, दे आर ऑल्सो स्मॉल चिल्ड्रन एंड अदर हार्मफुल जॉब जिसमें बच्चों को सिक्योरिटी नहीं होती, दे आर नॉट सिक्योर, दिस टाइप ऑफ वर्क दिस चिल्ड्रन लो दे आर, देन दिस इज प्रोहिबिटेड, स्टॉप, नॉट अलाउड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन दैट चिल्ड्रन शुड डू द वर्क. राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, इसका मतलब क्या है? एवरी पीपल, एवरी सिटीजन हैज़ राइट to choose his her own religion. All citizens have the freedom to follow and preach any religion of their choice. इसका मतलब है कोई भी सिटीज़न हो इसके लिए खुद की चॉइस है, जो अच्छा रिलीजन लगता है वो अप्लाइड कर सकते हैं. जो अगर वो हिंदू है और उसको अच्छा नहीं लगता, ही लाइक्स बुद्धिज़्म, ही कैन चेंज हिज रिलीजन. एंड जिसको कोई रिलीजन भी अच्छा नहीं लगता, ओके, जो नास्तिक होता है वो भी अब कोई रिलीजन को भी नहीं फॉलो करता, दैट इज़ ऑल्सो अलाउड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन. एंड द राइट टू एस्टैब्लिश रिलीजियस इंस्टीट्यूशन, और उनके लिए, सिटीजन के लिए, एवरीबडी हैज़ द राइट कि खुद के रिलीजियस इंस्टीट्यूशन जो है, रिलीजियस इंस्टीट्यूशन क्या होता है, टेम्पल, गुरुद्वारा, दिस ऑल कैन बी मेड बाय देम. देन नेक्स्ट राइट, सिक्स्थ राइट, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट. Each community has a right to preserve its culture. सभी कम्युनिटी के लिए राइट्स है कि अपना खुद का कल्चर प्रिजर्व कर सकते. व्हाट इज मीनिंग ऑफ प्रिजर्व? सेव. लैंग्वेज एंड स्क्रिप्ट, कल्चर प्रिजर्व कर सकते, लैंग्वेज. सो यू नो इन इंडिया देर आर सो मैनी लैंग्वेजेस, कितने थाउजेंड्स ऑफ लैंग्वेजेस है. हर एक स्टेट में अलग अलग लैंग्वेज है, हर एक रीजन में अलग अलग डायलेक्ट्स है. स्क्रिप्ट, व्हाट इज स्क्रिप्ट? रिटर्न फॉर्म, जैसे कि हम लिखते हैं ABCD आई, सभी की अपनी अपनी स्क्रिप्ट होती है. एंड स्टैब्लिश राइटिंग स्टाइल होती है. एंड स्टैब्लिश हिज ओन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, कोई भी एनी सिटीजन कैन स्टैब्लिश अपना खुद का स्कूल भी खोल सकते हैं, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन बना सकते हैं. एनी इफ़ दे वांट रीजनल लैंग्वेज, अपने खुद की लैंग्वेज, रिलीजन और स्टेट लैंग्वेज दे वांट टू यूज़, दे कैन यूज़. राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज. व्हाट इज मीनिंग ऑफ रेमेडीज? सुधारना, रिस्टोर, दोबारा हमने बनाना, रिस्टोर करना. सबसे ज़्यादा सभी में 7 फंडामेंटल राइट में ये सबसे ज़्यादा 7 राइट्स जो डॉक्टर BR अम्बेडकर ने बनाया, इसको वो हार्ट एंड सोल भी कहते हैं. वाई? बिकॉज आवर इंडिया इज़ अ डाइवर्स कंट्री. ओके, इंडिया में डाइवर्स कंट्री है, तरह तरह के लोग रहते हैं. एंड व्हाट द थिंग्स हैपन इन द राइट टू कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडीज में? राइट टू कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडीज सिक्स टू प्रोटेक्ट द सिटीजन ऑफ इंडिया अगेंस्ट द वायलेशन ऑफ द फंडामेंटल राइट्स बाय द स्टेट. तो क्या हो जाता है? सपोज यू गो टू, तो यहाँ पे मैं छोटा एग्जांपल देना चाहता हूँ. जैसे कि आप कहीं पे जा रहे हो, कहीं पे गए, वन पर्सन गोन समवेयर, तो वहाँ पे किसी को और किसी स्टेट में पहुँच गए, उस स्टेट में उसको क्या किया, पुलिस ने जेल में बंद करवा दिया. इसका कोई गुनाह नहीं था, लेकिन उसके ऊपर डाउट आने लग गया पुलिस को, और आफ्टर 10 days में उसको छोड़ दिया गया. तो दिस पर्सन इज लेफ्ट नाउ फ्रॉम द जेल. तो ये क्या हुआ? दिस पर्सन कैन गो नाउ टू द फंड, इसका राइट तो डिनाई हो गया, फंडामेंटल राइट जो था उसका तो डिनाई हो गया, अभी कोई फ़ायदा नहीं है फंडामेंटल राइट्स उसके लिए. तो इस राइट्स को दोबारा रिस्टोर कर सकता है. ही कैन गो टू सुप्रीम कोर्ट फॉर द प्रोटेक्शन. ये सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है, हाई कोर्ट में जा सकता है, एंड एनफोर्समेंट ऑफ द राइट. और ये राइट्स के लिए वो अपने उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई कर सकता है. दिस इज कॉल्ड राइट टू कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडी. यू अंडरस्टैंड दिस? Okay, tata, bye bye. Take care of yourself. Thank you.